Lecture number 23, greedy algorithms, second algorithm, which is Prim's. Today we talk about the Prim's algorithm. Prim's algorithm is a greedy approach that tries to find the minimum spanning tree MST of the graph. What we consider in most that the graph should be weighted and set of edges or touch all edges and minimum weight हमने calculate करना होगा. Not all edges may be used. So this is the most important points which we consider in the formulation of Prim's algorithm apply on that graph. Prim's algorithm. What is spanning tree? Set of edges that connect all nodes of graph and does not form a cycle. Okay. And what is minimum spanning tree? The subset of edges that connect all vertices in the graph and has a minimum total weight. So this is the definition of spanning tree and minimum spanning. So before applying on any graph, we must know this thing. कि हमारे पास जो स्पेनिंग ट्री होता है उसमें क्या होता है कि सारे एजेस कम वेट के साथ ग्राफ के कनेक्ट होते हैं और कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए. ठीक है. और वैसे तो ग्राफ में बहुत से मिनिमम स्पेनिंग ट्री बन सकते हैं. यानी अगर एक ग्राफ है उसके अंदर आपके पास n वर्टिसेस हैं तो n स्पेनिंग ट्री बन सकते हैं. लेकिन हमें एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री होगा जिसका वेट सबसे कम होगा पूरे ग्राफ के जितने वर्टिसेस हैं उनको अगर हम अटैच करें तो. दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन ग्राफ. इधर हमारे पास एक दिस ग्राफ हैज 4 वर्टिसेस एंड 1 2 3 4 5 एजेस. ठीक है. एंड बट वी हैव A B C D. वी हैव 4 vertices. So it's mean that this tree should be connect or minimum spanning tree should be connect with the cost of 4 minus 1. 4 minus 1 is equal to 3. It's mean ke 3 edges we should use to make a construct of minimum spanning tree. Okay. So if we start from A is our starting point. So we have two edges set AB and AF. Which one is minimum at the moment? Because we are using the greedy approach. So A to F is the minimum weight. So we include this edge and now we have two candidate after this. One is A and one is F. So from F we have more two edges, F to B and F to C. And which one is minimum? F to C. So we consider this edge and 2 edges are already we get. Now just one more edges to attach the B. So we have a candidate of A, F and C. So which candidate have less weight towards B is the A and B. So this is the way how we connect this graph, and this is the result of the minimum spanning tree. Because if we calculate this weights, it's 4, it's A to F2 and C to F1. Okay. So 4 5 6 7 is the cost of this minimum spanning tree, and we use this concept in the root construction or any like these type of application where we want to minimize the cost, like in computer networks we connect the terminals with the less cost so that we can apply this algorithm there. This is the algo of this Prim's algorithm. This is the function or pseudocode, you can say. Here we put a graph as show here, and then we apply the whole algorithm on it. How we implement this algorithm or pseudocode on this graph. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास G ग्राफ है, W हमारे पास एक सेट बन जाएगा जिसमें सारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ जाएगा और R हमारे पास इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमने इसे स्टार्ट करना है. सो इन ईच ट्रांजेक्शन फ्रॉम रूट टू एंड जब तक हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनता
हम ये अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करेगा, 1 बाय 1 हम हर स्लाइड पे इसको शो करेंगे। अभी हमने इसमें ग्राफ में कोई भी पॉइंट नहीं लिया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियली all the vertices should be indicate with a infinity। जैसे यहाँ पे आप देख लें u belongs to q, q के अंदर हमने सारे vertices जो है वो असाइन कर दिए हैं, vertices का जो भी सेट था वो हमने असाइन कर दिया, और फिर हमने की अब u इक्वल्स टू इन्फिनिटी के साथ एक लूप चला के सारों को इनिशलाइज कर दिया, यानी सारे vertices जो हैं इस वक्त इससे इनिशलाइज हो चुके हैं। अब हमें एक पॉइंट चाहिए स्टार्टिंग के लिए, वो हम R ले रहे हैं। R हमारा इसमें से कौन सा होगा, वी कैन सी दैट ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हमने 0 से इनिशलाइज कर लिया, ठीक है। अभी हमारे पास इसमें पॉइंटर में कोई भी नहीं है, यानी कोई भी किसी के साथ हमने इसको लिंक नहीं किया, ठीक है। तो अब हम आगे फर्दर चलेंगे, while q नॉट एम्प्टी एंड u इक्वल्स टू एक्सट्रैक्ट मेन q। तो यहाँ से 0 में हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो दो वर्टिसेस आएंगे या उनमें से कौन सा मिनिमम होगा, जो भी मिनिमम होगा वो हम जो है अपने उस सबसेट में ऐड करते जाएंगे, जो कि हमारा प्रिम्स का बनेगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिहाज से। अब हमने रूट सेलेक्ट कर लिया। अब हमने इसमें वर्टिसेस को क्यू से रिमूव करते जाना है और उसके साथ हमने बाकी कनेक्ट करते जाना है। इस वक्त हमारे पास कौन से वर्टिसेस आएंगे, एक हमारे पास 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो हमारे पास कॉस क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से u से नेक्स्ट जो हमारे पास वर्टिसेस है उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी, 14, यानी यहाँ से जो हमारे पास वर्टिस आएगा उसकी 14 कॉस्ट है और यहाँ से जो है वो 3 कॉस्ट है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, जाहिर सी बात है 0 से 3 वाला, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कॉस 3 बन रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो कैंडिडेट जो है वो हमारे सेट में जो है वो जो सेट में है वो 3 ऐड हो जाएगा u में। अब u से दोबारा से हम सिंगल सोर्स की तरह ही चलेंगे, क्योंकि सोर्स को हमने नहीं छोड़ना। तो आगे हम चलेंगे 3 से। 3 से हमारे पास 2 एडजेसेंट वर्टिस ऐड हो रहे हैं, तो एक ऑलरेडी 0 से था उसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक 8 आ रहा है और एक 10 है, तो इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है, 8 वाला, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम 8 के ऊपर जाएंगे, 8 से जितने वर्टिसेस एडजेसेंट लिस्ट में ऐड हैं उनको देखेंगे, तो हमारे पास ये 2 है और दूसरा 15 है। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 2, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से अब हमारे पास जब हम 2 पे पहुंचेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एजेस के साथ वर्टिसेस, एक 5 है, ठीक है, और एक 9 है इस तरफ, एक हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 5 है, ठीक है। इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 4, ठीक है। हम लोग 4 वर्टिस तक पहुंच गए थे। अब इससे आगे हमने किसको अटैच करना है, 5, हमारे पास एक ही वर्टिस रह जाता है जो कि 5 है, जो कि 6 के साथ हमने इसको भी डाल लिया। अब हमारे पास 2 रह गए, 9 और 15, तो उसके लिए तो हमारे पास 2 और 8 ही ऑप्शन है। पहले हम लोग 2 से 9 को कनेक्ट कर लेंगे, इसी तरह 8 से 15 वाले को कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रिम्स एल्गोरिथम, और इस सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास एक लेस अमाउंट की या मिनिमम स्पेनिटी की कॉस्ट आ जाएगी। व्हाट इज हेडिंग कीज के डिस्क्रीट की विद v इक्वल्स टू कॉमा w कॉमा w, ये हमें डिस्क्रीज की भी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हम जो रह गए हैं उनको दोबारा देख सकें। क्या देख सकें कि जो वर्ड पहले भी कैंडिडेट रह चुका है उसको दोबारा हम ऐड कर लेते हैं, ताकि अगर उससे कोई और एजेस जा रहा हो जो कि पिछले वाले एज के मुकाबले में या जो रनिंग एज होता है उसके मुकाबले में कम होता है। दो और चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं कि हाउ ऑफन इज एक्सट्रैक्ट मेन कॉल एंड हाउ ऑफन इज द डिस्क्रीट की कॉल, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी कॉस्ट जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द क्यू, बाइनरी हीप में अगर हम वो उसको डाल लें तो हमारी कॉस्ट जो है वो बिग O ऑफ ई लॉग ऑफ ई बनेगी,
और अगर फिबोनाची हीप के फॉर्म में हम उसे कर रहे हैं तो वो हमारे v log of e प्लस e h के हिसाब से कॉस्ट। ये एक और एग्जांपल है। यहाँ पे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखते हैं कैसे बनता है। तो ए से अगर हम स्टार्ट करें, क्योंकि प्रिंस में ऑलवेज वी नीड टू हैव अ सोर्स पॉइंट, तो यहाँ से हमारा एक ए से एफ बनेगा, फिर एफ से सी तक क्योंकि यही सबसे मिनिमम है, और फिर सी से डी ये भी कनेक्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास 3 के बाद डी भी एक कॉस्ट है जो कि इस तरह से है, ठीक है। लेकिन हमने सोर्स अगर हम देखें तो इसमें एक और है जो कि बी को कनेक्ट करने के लिए है। तो ये हमारे पास टोटल सीक्वेंस है जिससे हम जो है इसकी अगर हम कॉस्ट करें तो ये सबसे कम होगी, यानी 2 3 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिम्स की मिनिमम कॉस्ट बनेगी जिसके थ्रू हम इस सारे ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं। देख लें हमने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। ए के लिए नल था, ठीक है। ए से यहाँ तक गए तो 2 उसका वेट, और ये ए उसका किस पॉइंट से, किस पेरेंट से हमने इसको ट्रेवर्स किया, ठीक है। इसी तरह एफ से हमारे पास 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, एक 1F बन रहा है और 3F बन रहा है। फिर हमारे पास सी से एक बन रहा है जो कि 3, यानी सी से आते हुए ये वाला वर्टिस हमने ऐड किया, और लास्ट ई वाला ये वाला। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट जो ये मिनिमम बनेगी सबसे कम है, ठीक है। और ये सारे सबसेट्स को हमने, इन सारे एजेस को एक सेट में लिख लिया है, ठीक है। क्यों एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि सारे वर्टिसेस अटैच हो जाएंगे। जैसे ही सारे वर्टिसेस सारे अटैच हो जाएंगे तो हमारे पास ए के अंदर एक ऐसी लिस्ट आ जाएगी जो कि सारे जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का सेट बन रहा होगा, जो कि इस वक्त ये है, ठीक है। अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो ये 2 है, ये 3 है, और सी से सॉरी एफ की तो 1 है, तो इसको हम, ये हमारे पास 1 है, ये 3 है, और फिर इसी तरह से डी हमारे पास 3 है और डी 2। तो ये ऑलमोस्ट 3 3 6 7 8 9 10 11 कॉस्ट बनती है इसकी। इस मिनिमम स्पेंडिंग ट्री की टोटल कॉस्ट जो हमें मिलेगी प्रिम्स के ज़रिए वो 11 होगी। दिस इज़ अनदर एग्जांपल, एक और ग्राफ की हमने एग्जांपल ली है। इसमें सोर्स पॉइंट्स हमने ए मेंशन किया है ए में, ठीक है। ए से हम लोग 2 एच हमें एडजेसेंट मिल रहे हैं, ठीक है। जो मिनिमम है वो हमने सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि बी में आपको शो हो रहा है कि हमने बी सिलेक्ट कर ली, यानी पहला वेट हमारे पास ए से बी को कनेक्ट करने के लिए 4 है। अब बी हमारे पास कैंडिडेट है और ए भी कैंडिडेट, जिससे जो हमारे पास लेस आएगा। तो बी से हमारे पास इस वक्त का कैंडिडेट जो है वो 2 है, ठीक है, जो कि हमने सी में शो कर दिया कि इस वक्त ये 8 हमने शो है। 4 और 8 हमारे पास 2 एचेस हमने से 3 जो है वो वर्टिसेस को कनेक्ट कर लिया। इससे नेक्स्ट में अब हमारे पास सी से जो एडजेसेंट नोड्स बन रही है उसमें जो मिनिमम होगा वो हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे मिनिमम 2 बन रहा था, तो हमने डी में वो मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल इस वक्त तक का मिनिमम स्पैनिंग ट्री है 1 2 3 4। इसमें हमने 4 जो है वो नोड्स को 3 एजेस से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। डेफिनेशन जो है वो ट्री की n-1 एजेस होती है, तो वो देख लेंगे जितने वर्टिसेस हैं उसे एक लेस ही है एज को कनेक्ट करते हुए। अब हम अगर यहाँ तक पहुँचे हैं आई में, तो आई के बाद हमारे पास दोनों वेट हैं वो 7 और 6 हैं जो कि ग्रेटर हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास इसमें ग्रेटर आ जाता है तो लीस्ट सब पे चेक करता है कि कहाँ से सबसे लेस्ट हमारे पास आएगा, तो वो दोबारा सी पे जाएगा। सी से हमारे पास फिर एक लेस आ रहा है जिसको जो 4 है, तो देख लें यहाँ पे हमने 4 के साथ कनेक्ट कर दिए, और आई से फर्दर नहीं गए क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही थी, ठीक है। इसी तरह से जब हम एफ पे पहुँचेंगे तो हमारे पास ये सारा सेट है, इनमें से जिससे भी लेस्ट हमारे पास नेक्स्ट वर्टिस आएगा वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इस वक्त हमारे पास इसमें यहाँ से 2 आ रहा है, ठीक है। एफ के साथ 2 आ रहा है, यानी ये हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान करना है कि साइकिल नहीं बनना चाहिए। अब हम आई से जी वाला जो है ये वाला ये कतन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ये लेंगे तो साइकिल इनके दरमियान ड्रॉ हो जाएगा। तो ये वाला एजेस हमने कंसिडर नहीं करना, बल्कि इसको हमें रिमूव कर देना चाहिए।
अब हम दोबारा चलते हैं, हम हमारे पास ये सारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं। इससे अब हमारे पास जो रह गए एच, डी और ई, ठीक है, 3 रह गए। तो अब हमने देखना है कि कौन कौन से एच से हमारे पास मिनिमम जा रहा है। तो एच हमारे पास सबसे इस वक्त मिनिमम है, जो कि वाई से, सॉरी, जी से जा रहा है। तो ये हम कनेक्ट करेंगे जैसे हमने शो के यहाँ पे, ठीक है। अगेन ये 7 वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि 7 वाला वैसे भी कॉस्ट में ज़्यादा और वैसे भी साइकिल बनाएगा, इस वजह से हम ये तो ले नहीं सकते। तो फिर फर्दर हमें यहाँ से हम ले सकते हैं, जो सी से है वो 7 वाला हम लेंगे। देखिए ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही नोड रह गया और एक ही एज हमने कनेक्ट करना है। तो जो मोस्ट प्रॉबली ई है, यहाँ पे 10 कॉस्ट है, यहाँ पे 9 कॉस्ट है, ठीक है। तो 9 और 10 में से जो कॉस्ट कम है वो ई तक की है। तो ये देख लें हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया, और ये टोटल हमारे पास मिनिमम स्पेनिंग ट्री, इसके सबसेट्स आप बनाएं इसके, और फिर इसकी कॉस्ट भी उसमें मेंशन कर दें। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है मिनिमम स्पेनिंग ट्री थ्रू प्रेम्स। जी, ये एक हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ की एक और एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चलें तो 0 से हमारे पास कॉस्ट 2 तक की कम है, फिर 2 हमारे पास कैंडिडेट है तो 1 तक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 से हमारे पास 3 की कनेक्ट करेंगे। तो ये क्योंकि कॉस्ट जिस चीज़ की कम आएगी और उसके बाद ये है, लेकिन हम 4 के पास एक ही ऑप्शन है, तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देख लेंगे हमारे पास एक रिजल्टेंट इसका जो मिनिमम स्पेंडिंग है वो साथ ही इसका रिजल्ट बना हुआ है, सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट क्या बनती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 6, 8 एंड 6 हमारे पास 14 इसकी यानी मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री की बनेगी। डिफरेंस बिटवीन Dijkstra and Prims. Dijkstra algorithm find the minimum distance from node I to all nodes. You specify I, so in return you get the minimum distance from node I. Prim's algorithm get you minimum spanning tree from a given graph, a set that connect all the nodes while the sum of all the costs is also minimum possible. So this is the difference between the Dijkstra and Prim's. This is another example. Here we start from A. A has 2 vertices. One is 5, one is 7. So we select 7. From D, we have 3 edges. So we select F. Now again we have the candidate A, D and F. From here, minimum cost is at A to B. So our A, B, D and F are connected with 3 edges. So from B we have another edge which is of minimum cost E, which is 7, and then from E we have 5. So all vertices are now connected with this minimum cost, and this minimum cost is also have the minimum length of minimum spanning tree. This is another example. If we start from vertex 1, we have a cost of 1, 4 and 2. So 1 to 4 is selected. From 4 we have cost 5, 3 and 9, and from 1 we have cost 4 or 2. So again 1 is selected for the next edge, which is 1 from 2. From 2 we have 3, 2, 3 and 7. So which one we can select? All these are candidate. No, vertices 1, 4 and 2. They are all candidate for the next vertex. So which have minimum cost? 4 also have minimum cost 3. But we cannot select this because it make a cycle. And if it make a cycle, we cannot select it. So erase it from here. So only choice I have 2, 2, 3, which is of minimum cost. So we select this, and after 3 selecting and 3 vertices, now we left with the 6 vertices.
and 5 vertices. So one is again select, because it has 4, cost to connect 5. So here we connect 5, and now we just left 6. From 2 we have a cost 7, and from 3 we have 8. So there is one option which is from 2, which is this. So this is the result of this minimum spanning tree cost. This is another example. If we select from A, we have 2 minimum, 2 edges, 7, 5. So if we select this from D and A have 7 cost, and here we have a 6 cost, so we select this. From F we have 11, 8, which are cost, or from B we have 7 cost, A we have B cost, so we select this. So B is also our candidate. A, D and F and B, ये सारे हमारे पास कैंडिडेट है. हमने देखना है कि इन सब में से किसके पास मिनिमम एज अवेलेबल है. तो हमारे इन सब में बी के पास अवेलेबल है. बी से ई ये भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, और हमारे पास 1 2 3 4 एजेस के साथ 5 वर्टिस कनेक्ट हो चुकी हैं. अब इन सब में से किसके पास मिनिमम है? ई टू सी. अगेन ये ई से एफ वाला वर्टिस हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसकी एक तो ये साइकिल बना रहा था, दूसरा इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, तो हमने ई से सी ले लिया. अब हमारे पास सिर्फ एक एज रह गया जो कि एफ जी है, लास्ट एज. तो इसके लिए हमारे पास एफ से 11 है, यहाँ से 9 है, तो यहाँ ई से जी हम सिलेक्ट कर लेंगे. तो ये हमारे पास इसकी मिनिमम कॉस्ट की फॉर्मुलेशन और ग्राफ बन जाएगी. इसका हम सबसेट बना सकते हैं, और फिर हम इसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. होपफुली दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ. ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसको इस एडजेसेंट मैट्रिक्स को देख के आपने एक प्रेम्स के लिए ग्राफ बनाना है. ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने इसमें प्रेम्स का ग्राफ बना के उसके अंदर जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी है इन पार्ट ए. जब क्रस्कल कर लेंगे तो फिर इसका बी पार्ट ही आपको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज द क्वेश्चन टू ट्राई how from this adjacent matrix you can build the graph and then calculate the minimum spanning tree. So this is the homework of this. When we go through this lecture, I will ask you the minimum spanning cost of this graph.